टारगेट। चलो आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, देखो एक बार, ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे। चलो सब लोग तैयार हैं? चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। देखो मैं क्या क्या क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस। वाह 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 वाह, बोलो एक बार। सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं? चलो when outside temperature is -10, outside temperature कितना है सर? -10, ओके कोई बात नहीं, -10, a residential heat pump must provide 3.5 kilojoule per day to a building maintained a temperature of 20. So what is the outside temperature sir? Anyone? देखो this is the outside temperature, this is the building temperature, ये है building and this is outside, and we have a heat pump. No wastage of time, फटाफट कर लेंगे sir. It is a heat pump. So what is heat pump doing sir? It is taking heat from low temperature and throwing it to high temperature with some work input, and you know this is the heat pump. So now you tell me, in heat pump the focus is where? Lower temperature or higher temperature? It is on higher temperature. Higher temperature, higher temperature. And what is the lower temperature given sir? -10 degree. Convert in Kelvin. 273 minus 10, 263 Kelvin. And what is the higher temperature given? What is the higher temperature given? 20 degree. So 20 degree, 273 plus 20 is 293 Kelvin. कोई टेंशन नहीं है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, नो प्रॉब्लम। बोल क्या रहा है? Heat pump must provide 3.5 into 10 power 6 kilojoule per day. How much heat is to be supplied to a building? You should supply 3.5 into 10 power 6 kilojoule per day. All calculations are based on day, no problem at all. Okay, and the electricity cost 5 kilowatt per hour. The cost of electricity is 5 per kilowatt hour. तो क्या करना चाहिए सर? What is he asking? The minimum cost required to operate, minimum cost पूछा है सर. You tell me, the minimum electricity means work input should be minimum. We are giving input. When do you expect the work input to be minimum? Only when the cycle is reversible. Very good sir. So COP of heat pump is equal to desired effect by work input. What is the desire? The desire of a heat pump is to maintain higher temperature. So high maintain करने के लिए Q1 should be supplied and the input is W. As this is the generalized equation, as it is a reversible heat pump. Reversible. How do you know that it is reversible? Because he's asking minimum work input. Minimum work input के लिए reversible होना है. So what is the COP of reversible heat pump? T higher by T higher minus T lower. Excellent sir. C1 3.5 into 10 power 6. एक काम करते सर. All calculations are based on per day. All calculations are based on per day. So by W, Q1 is known, is equal to, what is the higher temperature? 293. By higher temperature is 293 and the lower is 263. क्या आप मुझे W का वैल्यू दे सकते सर? थोड़ा फटाफट दे दो प्लीज फटाफट दे दो सर, फटाफट दे दो। कितना आ रहा है? थोड़ा कैलकुलेशन। So W is equal to 358,362 kilojoule per day. ध्यान से सुनो सर, वो पूछ क्या रहा है सर? What is the operating cost for each day? Why the operating cost is incurred? Cost क्यों देना है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का मतलब वर्क को कैलकुलेट करना है सर। वेरी गुड। सो व्हाट कैन आई राइट? पर डे, वो डे का ही पूछ रहा है, ऑल आर पर डे ओनली। 358,362 किलोजूल है एक दिन के लिए, एक दिन का कैलकुलेशन है सर। वेरी गुड। तो क्या हम ऐसे कर सकते सर?
what I do, I'll divide and multiply with hour. दोबारा बता रहा हूँ सर, दोबारा बता रहा हूँ. Can I write this as per day? All calculations are based on per day. 358362 kilojoule तो आ गया. Per day it is so many kilojoule. तो I will multiply and divide with hour. आपको कोई टेंशन है सर? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर. I will multiply and divide with hour, and you know 1 hour is 3600 second. So what is kilojoule per second, sir? What is kilojoule per second? It is kilowatt. अब बताइए सर, now you divide with 3600, तो कितना आ रहा है सर? 99.55 kilojoule per second is kilowatt hour. इसका मतलब है these many kilowatt hour 99 these many kilowatt hour are consumed per day. एक दिन में इतने किलोवाट आवर कंज्यूम किया गया, लेकिन वो किलोवाट आवर नहीं पूछा है. किलोवाट आवर इज द यूनिट. एक यूनिट के लिए, एक किलोवाट आवर के लिए, आई रिपीट सर, एक किलोवाट आवर के लिए हाउ मच ही इज चार्जिंग? 5 रुपीज फॉर 1 किलोवाट. इधर देखो यहाँ पे दिया है. सो इट इज 5 रुपीज 5 पर किलोवाट आवर. एक किलोवाट आवर को 5 रुपए है. हाउ मेनी किलोवाट आवर यू आर यूजिंग? 99. तो एक के लिए 5 रुपीज, 99 के लिए इंटू 5, तो आपको पैसे आ रहा है 497.7. रफली इट इज 498 रुपीज. क्या ये बात सभी को समझ में आ गई सर? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन. देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर. ए क्लोज्ड रिजिड टैंक. प्लीज थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा सर, क्योंकि ना ये क्वेश्चन सीरीज है सर, तो प्लीज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर. माफी चाहता हूं सर, क्योंकि आपका फायदा होना जरूरी है सर यहाँ पे. ओके, मेरा प्रचार कोई नहीं चाहिए सर. हो गया, रिटायरमेंट स्टेज पे आ गए, क्या प्रचार चाहिए अभी? आप बोलेंगे सर 46 इयर्स. अरे एज बोल दिया. देखो, एक गया, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, गया. हाँ, a closed rigid tank fitted with a paddle wheel. ये paddle wheel contains 0.2 kg of air. The mass is given as 0.2 kg. Okay. Initially at 350 Kelvin and the pressure is 0.2 megapascal. The temperature initially is, anyone, what is the temperature, sir? What is the temperature? Initial temperature. It is 350 Kelvin and the initial pressure is कितना दिया सर? प्रेशर दिया सर, प्रेशर दिया 0.2 मेगापास्कल. अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो पास्कल में आएगा, तो 200 किलो पास्कल. वेरी गुड. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाँ, द पैडल व्हील स्टर्स द एयर फॉर 10 मिनट्स. कितने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर. ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यूनिट्स के लिए. कितने टाइम पे घुमा रहा है सर आप? 10 minutes. Am I right, sir? देखो, there is a motor. This motor is running the shaft and this paddle wheel is running for 10 minutes with a power input. देखो, motor is giving input. तो क्या ट्रांसफर हो रहा है सर इस सिस्टम को? अगर आप क्लोज्ड सिस्टम, दिस क्लोज्ड रिजिड टैंक, मतलब अंदर जो एयर है उसको सिस्टम मानेंगे, तो ध्यान से सुनो. एंड द इनपुट इज वेरिंग. देखो, W is equal to -20T. लेकिन यहाँ पे W is in watt, मतलब ये W किस में है सर? वॉट में है. एंड T is in, या देखो, W is in watt and T is in minute. Excellent sir. T is in minute. The final temperature is, देखो sir, the final temperature is 1100 Kelvin. The final temperature is 1100. Assuming ideal gas behavior, the magnitude of heat transfer. सुनो sir, is it a closed system or open system? It is a closed system. And first law of thermodynamics says d dash q is equal to du plus d dash w. Wait. आपको क्या चाहिए सर? He is asking the magnitude of heat transfer. सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब रिजेक्शन, सप्लाई, ये कुछ नहीं पूछा है. मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस माइनस छोड़ के सिर्फ वैल्यू पुट करना है. एंड इट शुड बी इन किलोजूल. ओके सर. Can I calculate du? It is an ideal gas. MCV T final minus T initial. So du is equal to M. What is the mass? 0.2. Air. For air, it is 0.718.
The final temperature is 1100 given and the initial temperature is 350. तो आप मुझे DU का वैल्यू बता सकते सर? क्या हो रहा है रे, क्या हो रहा है रे, क्या हो रहा है रे, क्या हो रहा है रे? DU का वैल्यू, DU का वैल्यू, DU का वैल्यू, DU का वैल्यू 107.7 unit. Mass is in kg, CV is in kilojoule per kg per Kelvin and temperature Kelvin. So answer will be in kilojoule. Very good. DU plus or minus sir. DU plus or minus plus होगा क्योंकि final temperature, क्योंकि ना आप वर्क कर रहे हैं, सिस्टम एयर पे वर्क कर रहे हैं, सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इट, सो वर्क इनपुट इज गिवन टू इट, सो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि इसीलिए बोलो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर इज मोर देन इनिशियल टेम्परेचर. वेरी गुड सर. नाउ वंडरफुल. द प्रॉब्लम हियर इज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर आई नीड वर्क ट्रांसफर. थोड़ा ध्यान से सुनो सर, मैं क्या कर रहा हूं सर यहाँ पे. एक काम करते हैं सर, लुक एट, यहां पे ये W किस में दिया सर? वॉट में दिया. तो एक्चुअली ये W नहीं है सर, ये पावर है सर. जब पावर, समझ में नहीं आ रहा सर, एक्चुअली ये W नहीं है सर, ये पावर है सर. यहां पे टाइम ले लेंगे और यहां पे पावर ले लेंगे सर. नहीं है सर, यहां पे पावर ले लेंगे, सो किस में ले लेंगे? वॉट में. किस में ले लेंगे? वॉट. वॉट का मतलब क्या है सर? मैं थोड़ा जीरो लेवल से पढ़ूंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है सर. This power is given in what? अब मुझे बताओ सर, when time is zero, what is the power? When time is zero, what is the power? 20 into 0, तो 0 होगा. तो इनिशियल पॉइंट ये है सर. नाउ टाइम को 10 सेकंड ले लें, 10 मिनट. ये T मिनट में, ध्यान से सुनो, ये T मिनट में दिया सर. इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में T मिनट में दिया सर, T, इसलिए 10 मिनट ले लेंगे. तो 10 मिनट के बाद पूछा है, तो अगर T 10 है तो ये कितना होगा सर? -200. ध्यान से सुनो, आप अपने यूनिट्स में कर नहीं सकते सर. ये W किस में दिया सर? एनीवन इन द क्लास, ये W किस में दिया? वॉट में ही आएगा. ये एक एम्पिरिकल रिलेशन की तरह है सर. इट इज समथिंग लाइक एम्पिरिकल रिलेशन. दिस W इज इन वॉट, ओके, एंड T इज इन मिनट. वेरी गुड सर. अब देखो, आफ्टर 10 सेकंड, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद पावर कितना है सर? -20 into 10. तो कितना? 10 मिनट. ये मिनट में ही सब्स्टिट्यूट करना, डोंट कन्वर्ट, ये मिनट में ही सब्स्टिट्यूट करना, बिकॉज वो मिनट में पूछा है. तो कितना आएगा सर? -200. तो ये होगा आपका. माइनस छोड़ दो सर, क्यों माइनस दिया होगा थोड़ा सोचो, क्यों माइनस दिया होगा थोड़ा सोचो. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पैडल व्हील है, पावर इज ऑन द सिस्टम, इसलिए आप मैग्नीट्यूड ले लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही खेल है. तो 10 सेकंड के, 10 मिनट के बाद, एंड दिस पावर इज, माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस इज द पॉइंट. ध्यान से सुनो, ये हो गया आपका 200. ये 200 वॉट है सर, बिकॉज ऑन दिस एक्सिस द पावर इज इन वॉट. पावर वॉट में दिया और T मिनट में दिया. T को मिनट, 10 मिनट का मतलब 200 और पावर. तो हाउ इज इट? सी, और पावर और इसका लाइन क्या है? दोनों का स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग. वेरी गुड सर. अब बोलो सर, सुनो केयरफुली, ये एरिया क्या देखा? बहुत केयरफुली देखो, एरिया क्या देखा? सुनो सर, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. यस और नो? यस और नो? पावर इज वर्क बाय टाइम. अगर वर्क चाहिए, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम. सुनो केयरफुली, इसका मतलब ये पावर है, ये टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा. मतलब ये जो एरिया क्या दे रहा है सर? व्हाट इज दिस एरिया गिविंग? इट इज गिविंग मी वर्क. It is giving me work. 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 So therefore, work is equal to area half base. What is base? 10 minute. Base 10 minute. Height 200 watt. नहीं है सर आपको 200 watt. तो जो यूनिट में दिया है उसी यूनिट पे लिखना. गलत शारदास जी, गलत. ये यूनिट का खेल है सर, ये पूरा यूनिट का खेल है सर, ये पूरा यूनिट का, शर्म करो, यूनिट का खेल है सर, यूनिट का खेल है सर. ये हाफ बेस इज 10 मिनट, तो मिनट लिखा, एंड हाइट इज 200 वॉट. दिस देखो, हाफ इंटू 10, व्हाट इज मिनट? 60 सेकेंड इंटू 200, व्हाट इज वॉट? जूल पर सेकेंड. तो ये सेकंड गया, तो ये 2, ये 100. सो देयरफॉर 60 into 10 power 3 joule, or it is 60 kilojoule. That is the work. यही तो ट्रैप है सर, यही तो ट्रैप है सर. ये क्वेश्चन आएगा रे बाबा. देखो,
Should I take plus or minus? Yeah, minus. Wonderful, Umang. Therefore, d dash q is equal to du plus d dash w. What is the heat transfer? मुझे पता नहीं. Internal energy change 107.7 kilojoule, 107.7 plus work. It should be minus. It should be minus. It should be minus. नहीं आ रहा सर. कितना आ रहा? Work कितना आ रहा सर? Work कितना आ रहा? Minus 60. Why minus? Because it is paddle wheel on the system. What is the heat transfer? Anyone in the class? It is 47.7 kilojoule. अच्छा लगा सर? अच्छा लगा सर क्वेश्चन? 47.7 kilojoule. Is it clear, my dear? Is it clear, my dear? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर. हमारी जिंदगी में आपका टाइम को रिस्पेक्ट देना है. चलो थर्ड क्वेश्चन ले लो. जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा देख लेना. मैं देखो अच्छे क्वेश्चन देके छोड़ दूंगा. करो रे बाबा, करोगे याद, हर बात याद आएगी. हाँ. A rigid tank of volume 2 meter cube contains 5 kg of mixture, actually 5 kg of mixture as saturated liquid vapor mixture, 5 kg of mixture. And what is the pressure? The pressure, अच्छा क्वेश्चन है सर, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है सर. 400 kilopascal. हाफ एक कंटेनर है रे बाबा. इस कंटेनर में क्या क्या है सर? इस कंटेनर में क्या क्या है? There is a saturated liquid, there is a saturated vapor. Very good. ये है आपका saturated liquid और ये है आपका saturated. सुनो. This is our saturated vapor. This is saturated vapor and this is saturated liquid. Wait. सुनो सर, wait. Very good. Rigid tank का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है. बहुत बढ़िया. सुनो सर, सुनो ध्यान से सुनो सर. ये उतना आसान नहीं है. कितना मास है सर? टोटल मास कितना है सर? The total mass is 5 kilogram. Wonderful, sir. My dear. And what is the pressure given? 400 kilopascal. ध्यान से सुनो. क्या बोला है पता है? Initially इसमें कुछ saturated vapor है, saturated liquid है. Now what he is doing, some saturated liquid is removed. कितना saturated liquid? Half of the mass of saturated liquid is removed. तो पहले initially the total mass was 5 kg. और total mass में there is some saturated liquid, there is some saturated vapor. तो out of the saturated liquid उसको निकाल दिए सर. गलत है. क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ते आप. क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया आपको. हाफ ऑफ द किसका हाफ निकाला? हाफ मास ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड बोला. ये 5 kg टोटल मिक्सचर का है. यूजलेस फेलो. ये 5 में वेपर भी है, ये 5 में वेपर भी है, लिक्विड भी है. तो कौन सा हाफ निकाला? जो लिक्विड है उसमें आधा निकाला. तो निकालने के बाद जो बचा है उसका ड्रेनेज फ्रैक्शन क्या है पूछा है. सीधा क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सर. मजा. इधर देखो मैं बताता हूं सर. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मास. चुप. So specific volume, initial specific volume by mass. Very good. What is the volume? It is 2 kg. And what is the mass? 5 kg. What is the specific volume, sir? What is the specific volume? 0.4. And आप जानते हैं, it is in wet mixture. So can I write this as VF plus X into VG minus VF? ये कब का है सर? ये इनिशियल का है. इनिशियल का. Very good. Specific volume is 0.4. What is VF? What is VF? 0.001004 plus X into VG minus VF. VG 0.46296 minus VF 0.001004. Actually VFG दिया है. डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस दे रखा है. कोई बात नहीं, डायरेक्टली दिया है. Can anyone डायरेक्टली VFG दिया सर? इसका डिफरेंस डायरेक्टली दिया है सर. माफी चाहता हूं सर. Can anyone tell the drainage fraction? 0.8647. क्या मतलब है सर? तो initially, what is drainage fraction? Mass of vapor by total mass. What is the total mass? Mass of vapor by total mass. Total mass तो 5 किलो है. तो originally vapor का mass कितना है सर? Originally, अरे यार ये भी समझ में नहीं आ रहा. Mass of vapor by mass of vapor plus mass of liquid. ये total mass is 5 kg. So therefore MB is equal to 5 into X. MB is equal to 5 into what is X?
0.8647. So what is the mass of vapor? Anyone? What is the mass of vapor? 4.324. तो what will be the mass of liquid? 5 kg में इतना वेपर है सर। 5 kg में, इसमें ध्यान से सुनो सर, तो इसमें कितना वेपर है रे बाबा? इसमें कितना वेपर है? तो मास ऑफ वेपर इज 4.324। इतना वेपर है सर, इतना वेपर है। तो लिक्विड कितना है सर? 5 से ही निकालना, 5 minus 4.324, तो कितना आ रहा है सर? 0.675। इज इट करेक्ट? 0.676 ले लेंगे, 0.676 kg। तो ये लिक्विड कितना है सर? 0.676। इस लिक्विड में वेपर को टच नहीं कर रहे सर, वेपर को टच नहीं कर रहे सर, सिर्फ मास ऑफ सच हाफ ऑफ द लिक्विड इज रिमूव्ड। तो इसमें वेपर जितना है उतना ही रहेगा और लिक्विड आधा गया। तो हाउ मच इज दिस? तो नया लिक्विड जो बचा है, नया लिक्विड जो बचा है इसका आधा, तो 0.338 ना, 0.338 ये लेफ्ट। तो इस मिक्सचर में ऑलरेडी इतना वेपर है, इतना लिक्विड है, तो व्हाट विल बी द ट्रांसफेक्शन मास ऑफ वेपर? दैट इज 4.324 बाय टोटल मास, दैट इज 4.324 प्लस मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड 0.338। तो कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है बाबा? 0.927। समझ में आया नहीं सर? कुछ तो बोलो रे, कुछ तो बोलो रे, आप बोलो रे, आप बोलो रे। इसलिए मैं एक ही बोल रहा हूं सर, क्वेश्चन को ढंग से समझो, क्वेश्चन को ढंग से समझो, क्वेश्चन को ढंग से समझो। बोले पर असली मजा 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 ये है। ये क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, मेरा स्टूडेंट जो पूरा अपना लाइफ देके क्वेश्चंस बनाया। आई सेड आई वांट द बेस्ट। वाह, पढ़ो पढ़ो, मजा 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 मजा। Wonderful students, my dear students, enthusiasm रहे ना लाइफ में, एंजॉय करो लाइफ। सुबह से क्लास ले रहा हूं फिर भी वही enthusiasm, क्योंकि I love my profession। आप लोग रोते बैठो। An inventor claims to have developed a power cycle। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, साइकिल डेवलप करो एक। तो यहाँ एक सेकंड रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं लेने का। तरुण क्या मर गया? खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। सुनो रे। An inventor claims to have developed a power cycle operating between hot and cold reservoirs. Hot reservoir is at 6000 Kelvin. ये 6000 Kelvin सही है रे? 6000 Kelvin. Okay sir, okay sir. So okay sir. And this temperature is 300 Kelvin. Okay sir, कोई बात नहीं। That develops a network। देखो that develops network equal to multiple of amount of energy QC rejected to a cold reservoir। अच्छा, it is rejected to cold reservoir, but he said the work developed is some multiple of QC बोला है। नहीं आया समझ में? अरे यार, cold reservoir को इतना रिजेक्ट कर रहा है, but the work developed is some multiple of QC बोला है, some multiple of QC बोला है सर। देखो, the work is this, where all quantities are positive, the maximum value of n is, he is asking the maximum value of n। My dear loving students, ये maximum कब होगा रे बाबा? ये मैक्सिमम तभी होगा जब वर्क मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम तभी होगा, वो पूछ रहा है इनका मैक्सिमम वैल्यू। n value will be maximum only when w is maximum, w is maximum only when the cycle is reversible। Okay बाबा, I do not know what is this। इसको ले लेंगे, ये कोल्ड है तो हॉट ले लेंगे। My dear loving students, can I write supply minus rejection? ये अरे क्या स्टूडेंट्स है, आप भी क्या स्टूडेंट्स है, नमूने जी। अंदर आ रहा है QH, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जाना है। सो W प्लस QC, सो QH इज इक्वल टू जो अंदर आ रहा है बाहर, W अंदर जो आ रहा है बाहर, सो NQC प्लस QC। एनी प्रॉब्लम्स?
NQC plus QC. Any problem, sir? बिल्कुल नहीं है, sir. What is the efficiency? It should be reversible. Maximum. Why maximum? Because he is asking the maximum value of n. n तभी maximum होगा जब w maximum होगा. n तभी maximum होगा जब w maximum होगा. w maximum तभी होगा जब साइकिल रिवर्सिबल होगा. क्योंकि maximum वर्क तभी मिलेगा जब साइकिल रिवर्सिबल होगा. रिवर्सिबल जब होगा तो एफिशिएंसी टेंपरेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं 1 minus T lower by Tr. ये तभी आएगा. तो कूल कैसे होता है रे? 1 minus T lower. What is T lower? 300 by T higher is 6000. Can anyone give me the efficiency? Can anyone give me the efficiency? 0.5 बोल रहा है. शर्म कर रहे. Efficiency कितना आ रहा है? Efficiency कितना आ रहा है? शर्म करो. 0.95. So efficiency can be written as output by input. 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 What is the efficiency? 0.95. Output कितना है? NQC. NQC. Output is NQC. And QH. What is QH? NQC plus QC. Input is NQC plus QC. तो NQC by QC बाहर ले लो 1 plus N. QC बाहर ले लो. QC गया. तो 0.95 is equal to N by 1 plus N. बोलो रे बाबा. पॉइंट नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा. तो N का वैल्यू कितना आएगा सर? कैलकुलेट करो. 19. क्या ही तो बात रे. झमाझम. हाँ सर. इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल. अच्छा लगा? वंडरफुल. कम ऑन. टाइम वेस्ट नहीं करने का रे बाबा. हमारे जिंदगी में यही तो है रूल. टाइम वेस्ट करने का ही नहीं. ये पढ़ो. A reversible compression process is shown on PV diagram and TS diagram. Okay. The magnitude of change in internal energy is cool रहो सर. कभी भी याद रखना, हम एंट्रोपी पढ़ा है आपको. एंट्रोपी में टेम्परेचर शुड बी केप्ट इन केल्विन. ये तो मैं बोला सर आपको. ये तो बोला, लेकिन आप याद नहीं रखते सर. पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करना. 152 plus 273. 152 plus 273 कितना है रे बाबा? ये 425 है. और केल्विन में कन्वर्ट करना. ये कितना हो गया? 293. करेक्ट ना? हम केल्विन में कन्वर्ट किया सर. 293. मुझे बताइए सर, बहुत केयरफुल देखो. पीवी डायग्राम पे एरिया क्या देगा? सारे रिवर्सिबल है. अगर रिवर्सिबल है तो पीवी वर्क, टीएस हीट. पीवी वर्क तो कैसा करेंगे सर? माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, इसको यहां पे प्रोजेक्ट करना, इसको यहां पे प्रोजेक्ट करना. तो ये एरिया क्या देगा रे बाबा? एनीवन इन द क्लास, व्हाट डज दिस एरिया गिव अस? ये एरिया क्या देगा? एनीवन इन द क्लास, क्या देगा ये एरिया? क्या देगा? एनीवन इन द क्लास? वर्क इन 1 to 2 प्रोसेस. तो एरिया कैलकुलेट करो. सो देयरफॉर व्हाट इज इट? इज ट्रेपेजियम सर. ये ट्रेपेजियम है. दिस लेंथ इज 500 एंड दिस लेंथ इज 100 and this difference is 6 minus 3. It is 3 meter cube. Units की तरफ ध्यान दे रहा हूं. Whenever this is in kilopascal and this is in meter cube, you will get the work in kilojoule. कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई करना. एरिया का मतलब A into B. तो बोलो सर, half into ये वर्क देगा सर. PV diagram is work. Half into sum of the parallel sides. ये कितना है सर? 500. ये कितना है सर? 100. देखो, this length is 100, this is 500. So therefore, half into sum of the parallel sides into distance between them. 6 minus 3 is 3. तो कितना आ रहा है सर? ये 900. Unit. Kilojoule. Stops us. Should this work be positive or negative? Compression बोला है. तो ये नेगेटिव आएगा. बाद में देख लेंगे. जब आप फ्लूइड को कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट क्या होगा सर? रिजेक्ट होगा सर. हीट क्या होगा सर? रिजेक्ट होगा. नहीं आ रहा सर, क्योंकि जब कंप्रेस कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट हीट इज रिजेक्टेड. नहीं आ रहा सर आपको? कसम से बोलो आ रहा है. सो अब देखो सर, प्लीज बताइए, कसम से बोलो. एंट्रोपी का यूनिट पूछा है. बहुत सही है सर, बहुत सही है. मेरे लविंग स्टूडेंट्स ने बहुत सही पूछे सर. बहुत सही पूछे. मेरे लविंग स्टूडेंट्स ने बहुत सही पूछे. अब देखो सर, अब देखो सर जी. प्रोजेक्ट दिस. व्हाट डज दिस एरिया गिव अस? ये एरिया हमें क्या देगा रे बाबा?
ये एरिया क्या देगा रे बाबा? एनीवन? हीट ट्रांसफर on TS diagram. Area will give me heat transfer, so therefore this will be equal to half into area. Heat transfer देगा half into sum of the parallel sides. ये वाला it should be in Kelvin. It should be in Kelvin. ये लेंथ कितना है सर? 425 प्लस ये लेंथ कितना है? 293. थोड़े लोगों को समझ में नहीं आ रहा. ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. 3 minus 1 कितना होगा सर? 3 minus 1. एक बार यूनिट को चेक करेंगे. दिस इज इन केल्विन एंड दिस इज किलोजूल पर. कहां गया सर? मैं कहीं मिस्टेक किया क्या? एक सेकंड. किलोजूल पर केल्विन सर. ये किलोजूल पर केल्विन है, नॉट पर केजी. ये किलोजूल पर केल्विन है सर. मैं एक बार क्वेश्चन को देख लूं तो आई विल सी द क्वेश्चन. एक सेकंड. किलोजूल पर केल्विन सर. ये किलोजूल पर केल्विन है सर. आई एम रियली सॉरी. किलोजूल पर केल्विन है सर. किलोजूल पर केल्विन है सर. सो ये आ रहा है, कितना आ रहा है सर? एनीवन? क्यू कितना आ रहा है सर? एनीवन इन द क्लास? क्यू कितना आ रहा है? 182 ना. क्यू कितना आ रहा है सर? 718. स्टॉप. अब साइन का खेल है सर. d dash q is equal to du plus d dash w. ये जो हीट है प्लस है या माइनस है सर? When you are compressing, heat is rejected. तो ये माइनस होना चाहिए सर. du वर्क जब कंप्रेस कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये भी माइनस होगा सर. ये भी माइनस होगा सर. अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du? 182 किलो जूल. फिजिकल मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल है सर. जितना वर्क सिस्टम को दे रहा है वो ज्यादा है, इट इज मोर 900, और जो हीट बाहर जा रहा है इट इज 718. तो बाकी का क्या होना चाहिए सर? स्टोर होना इंटरनली. दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग. इज द क्वेश्चन क्लियर सर? ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर. ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर. करो अ सिंपल क्वेश्चन. ये आने के चांसेस है. हम क्लेपिरॉन इक्वेशन पढ़े सर, किसी को याद है सर? किसी को याद है सर? ये मैं बताया था सर क्लास में. आई टॉट दिस. वेरी गुड. तो व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन? नहीं है, एंथैल्पी सर. इट इज एंथैल्पी. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस प्रिंटिंग मिस्टेक. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. क्या हम लेटेंट हीट को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं सर? क्या हम लेटेंट हीट को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल बोल सकते हैं सर? ये पूछ रहा है सर. कैन आई राइट LH is equal to dP by dt and temperature should be in Kelvin into VFG. ये इधर लाना. VFG can be written as VG minus VF. ये दोनों इधर लाना. dP by dt into 2 into VG minus VF. Excellent sir. तो this will be equal to, ध्यान से सुनो, लेकिन आंसर पूछा है किलोजूल पर केजी. तो प्रेशर को आप पास्कल में मत रखना सर, किलो पास्कल में रखना. प्रेशर को आप पास्कल में मत रखना सर, किलो पास्कल में रखना. Why? Because I want in kilojoule per kg. dP by dt. देखो अब, can I write this as 3.75? क्योंकि 3750 is Pascal. 3.75 kilo Pascal by Kelvin. What is the temperature sir? 100 degree. Should I write 100? No. Kelvin में put करो. No. Kelvin में put करो. 373 Kelvin into Vg minus Vf. What is Vg minus Vf? 1.672 मीटर क्यूब पर केजी. एक सेकंड रुको जरा. केल्विन केल्विन कट गया. और एक बात, कैन आई राइट दिस पास्कल एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल. तो मीटर स्क्वायर गया तो किलो न्यूटन मीटर इज जूल. किलो न्यूटन मीटर इज किलो जूल पर केजी. कितना आ रहा है सर आंसर कितना आ रहा है सर? किसी को नहीं आया सर. मैं बहुत शर्मिंदा हूं, किसी को आंसर नहीं आया रे बाबा. 2 वंडरफुल सर. 2338.7 किलोजूल पर केजी. किसी को आया सर? ये क्वेश्चन भी आ सकता है सर. इज इट ओके माय डियर लर्निंग स्टूडेंट्स? वेरी गुड. ये वाला देखो. MS क्यू. Come on. Come on.
a gearbox operating, and the catch word here is बहुत इंपॉर्टेंट है सर. The catch word here is steady state. Receives 0.1 kilowatt. Sorry sirs, और ये भी किलोवाट है. ओके, माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ. सुनो केयरफुली. So it is kilowatt sirs, it is not kilometer. मैं दोबारा बता रहा हूँ. This is the input shaft. This is a gearbox. From the input shaft, it is receiving through this shaft. How much work it is receiving? इस shaft से कितना work receive कर रहा है? 0.1 kilowatt. And this gearbox is delivering this much work output. देखो एक बार, along देखो shaft, it is the shaft work sir. ये जो है ना 0.1 kilowatt, 0.095 is the shaft work. एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सर, I'll explain beautifully. Don't worry. A gearbox operating under steady condition. ये steady वाला term क्या है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब properties are not changing with time. कोई बात नहीं सर. And it receives 0.1 kilowatt on the input shaft. Shaft से क्या मिलता है सर? Work मिलता है. कि shaft से क्या मिलता है? Work मिलता है. Very good. बहुत बढ़िया. And delivers 0.095 kilowatt at the output shaft. चलो output shaft पे दे दिया. The outer surface of the gear is maintained at 50 degree. For the gearbox, which of the following are correct? इधर देखो सर, rate of heat transfer पूछा है और entropic generation. Means you have to calculate rate of heat transfer and entropic generation सर. देखते हैं सर. Don't worry, don't worry, don't worry. अभी मैं करूँगा सर, आराम से, टेंशन नहीं लेने का. क्या ये क्वेश्चन करेंगे सर? बहुत मजे में करेंगे सर. बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है सर. Now we'll try to do it. Don't worry at all. एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ो सर. I request everyone to read the question sir. I request everyone to read the question sir. I request everyone to read the question sir. सुनो सर, मयंक ने आंसर दिया बी और सी. सुनो केयरफुली, चेक करते हैं कितना इनपुट लिया रे बाबा. 0.1 किलोवाट. और कितना बाहर दे रहा है ये? 0.095. Let us take this gearbox as a system. Why are you taking gearbox as a system? क्या कोई रीजन बता सकते सर? Because everything is asked with respect to gearbox. वो क्या पूछा है सर? For the gearbox बोला है, इसलिए मैं gearbox को system ले रहा हूँ. चलो system ले लो. सुनो carefully. Wait. Wait. This is also in kilowatt. इसका टेम्परेचर कितना दिया है सर? 50 डिग्री. Convert in Kelvin. तो add 273. तो कितना आ रहा है सर? Is it 323 Kelvin? Excellent sir, excellent sir. Wait. ये होगा सर, ध्यान से सुनो, चुपचाप बैठो. D dash Q is equal to du plus D dash W. Do you have any problem sir? किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर. किसी को कोई क्या बोलता है सर? योर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च नोट ऑफ 600 पेजेस कंप्लीट फॉर अ ईयर. इट इज कंप्लीट. व्हाई दैट डाउट? ओके, चलो सुनिए. नाउ देखो सर, लेट मी राइट दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन रेटेड फॉर्म. व्हाट डू यू मीन बाय रेटेड फॉर्म? डिवाइड विद टाइम, डिवाइड विद टाइम, डिवाइड विद टाइम. चुपचाप बैठो. कैन एनीवन टेल द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट में there is no change of properties with respect to time. Is heat transfer a property? No. Is work transfer a property? No. Is internal energy a property? Yes. So when it is a property, there is no change of property with respect to time. तो steady के कारण ये शून्य हो जाएगा सर. बहुत बढ़िया. अब देखो सर, d dash q by dt is equal to, यहाँ पे वर्क अंदर आ रहा है और यहाँ पे वर्क बाहर जा रहा है. जब ये वर्क अंदर आ रहा है तो इट इज डन ऑन द सिस्टम. जब ये वर्क बाहर जा रहा है इट इज डन बाय द सिस्टम. नहीं आ रहा सर,
नहीं आ रहा है सर। जब ये अंदर आ रहा है, बोलो बोलो, तो कितना होगा सर? -0.1 किलोवाट। ये क्यों माइनस ले रहा है? बिकॉज इट इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये वर्क बाहर जा रहा है, सो देयरफॉर इट इज प्लस 0.095। क्या कोई मुझे dq by dt दे सकते सर? क्या कोई मुझे dq by dt दे सकते सर? -0.005 किलोवाट। क्या मतलब है सर? किसी को तो समझ में आया सर? ये वर्क अंदर आ रहा है, ये शाफ्ट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम इज डिलीवरिंग, ये देखो एक बार, एंड डिलीवर्स अलोंग द आउटपुट शाफ्ट। सो ये हम इनपुट को दे रहे हैं, तो वर्क इनपुट को दे रहे हैं, और ये शाफ्ट दे रहा है मुझे, सो देयरफॉर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हीट इज रिजेक्टेड। कहां से? इस गियर से कितना हीट बाहर जा रहा है सर? 0.0005 किलोवाट। राहुल बी केयरफुल, राहुल बी केयरफुल। तो ये वर्क अंदर आ रहा है, और क्या बोला? एंड डिलीवर्स अलोंग आउट। डिलीवर्स का मतलब दे रहा है, कहां से दे रहा है? आउटपुट शाफ्ट से दे रहा है। इनपुट को आप दे रहे हैं, इनपुट को आप दे रहे हैं, और आउटपुट से गियर बॉक्स से मिल रहा है आपको। बी केयरफुल सर, वो ऑप्शन भी था शायद, वो ऑप्शन भी था। तो अब ये ऑप्शन गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और क्या बोला है सर? एंट्रोपी जनरेटेड इन द गियर बॉक्स। Oh my God, ds is equal to d dash q by t plus del s generation. Wait. किसके लिए अप्लाई कर रहे सर? किसके लिए? Yes, exactly, Ramalingo. But he used average temperature. Average का मतलब some part is high. समझ गया ना? गियर बॉक्स के लिए इसको रेटेड फॉर्म में लिखना, रेटेड फॉर्म, डिवाइड विथ टाइम। जब हम डिवाइड विथ टाइम करेंगे, डॉट लिखेंगे। यहाँ पे डॉट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डॉट का मतलब, and you know it is a steady state. Steady state के लिए entropy change क्या होगा? Zero होगा. It is a property. So zero is equal to d dash q by t plus del s generation. Already heat transfer आ गया सर, already heat transfer आ गया। तो कितना आ गया? माइनस जीरो। गियर बॉक्स के लिए अप्लाई करो, गियर बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो ये माइनस है सर, -0.005 किलोवाट बाई, ये माइनस क्यों ले रहा है सर? हीट ट्रांसफर माइनस क्यों ले रहा है? बिकॉज इट इज लूजिंग by temperature. What is the temperature? 323 Kelvin plus del S generation. So therefore del S generation is equal to, ये इधर आएगा 0.005 by 323, unit is kilowatt per Kelvin. कितना आ रहा है सर? Kilowatt per Kelvin. I think it is 1.547 into 10 power minus 5 kilowatt per Kelvin. So therefore 1.54 yes into 10 power minus 5 kilowatt per Kelvin. किसी को आया सर? I think Mayank got this answer. तो ये क्या पूछ रहा है रे? ये आदर्श क्या पूछ रहा है? फॉर हीट ट्रांसफर पी के राजपूतान यूनिसेंजर इज प्रेफर फॉर गेट हीट ट्रांसफर पार्ट। आप सेंजर ले लेना, अगर सेमेस्टर के लिए पढ़ना है तो राजपूत पढ़ लेना, ठीक है सर? बीच में डिस्टर्ब मत करना सर हमारा फ्लो, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करना सर हमारा फ्लो, हम बहुत इंपॉर्टेंट काम पे है, प्लीज पढ़ो सर। क्लास क्वेश्चन, क्लास मींस क्लास क्वेश्चन, प्योर क्लास। पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। Air in a piston cylinder. This is the cylinder, and this is the piston, and there is a spring also, sir. Oh my God! P naught is outside atmospheric temperature. Ks is spring stiffness. Okay. आप क्या कर रहे हैं सर? देखो एक रिजर्वायर है सर, यहाँ पे रिजर्वायर, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर? कुछ कहीं पे दिया सर, कहाँ पे दिया रे? The air is heated from initial date by a 1700 Kelvin reservoir. तो यहाँ का टेम्परेचर है 1700 केल्विन। So is the temperature of the reservoir changing sir? No. Is the temperature of reservoir changing? No. तो यहाँ से हीट सप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा सर? Okay, मैं बताऊंगा सर, प्लीज 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 शांति से बैठो, क्लास क्वेश्चन है सर। एयर is shown initially it is at 200 kilopascal, 300 Kelvin and volume is 0.5. तो इनिशियल कंडीशंस बताओ सर एक बार।
Dear students, initial conditions बताओ. Anyone? Initial conditions बताओ. The initial pressure is 200 kilopascal. कोई बात नहीं सर. And temperature is 300 Kelvin. ये सब initial है सर. And the volume is 0.5. क्वेश्चन को समझो सर, क्वेश्चन को समझो. मेनी क्वेश्चंस आर हिडन इन दिस. एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस, इसीलिए रिवीजन क्लास बोलता हूं मैं. इफ द पिस्टन इज एट स्टॉप, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है. सुनो केयरफुली, ये इनिशियल कंडीशन है. सो ये इनिशियल कंडीशन है. इफ द पिस्टन इज एट स्टॉप्स, द वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना दिया सर? 0.5. ओरिजिनल वॉल्यूम इज 0.5. तो when the piston is touching stops, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब. इसका मतलब इनिशियली the piston is not touching the stop. नहीं आ रहा सर? देखो देखो मैं बताता हूं सर. सुनो सर, सुनो सुनो रे. देखो अब ये सिचुएशन है सर. व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर? 200 kilopascal. What is the initial temperature? 300 Kelvin. And what is the initial volume? 0.5. सवाल को देखो सर. If the piston is at stops, the volume is 1 meter cube and the pressure of 400 kilopascal is required. अच्छा, इसका मतलब जब ये पिस्टन टच कर रहा है, इधर देखो सर. Alex Spencer, don't worry at all. अच्छा क्वेश्चन है तो इसको रेस्पेक्ट देना जरूरी है सर. Now this is the piston. ये बोल रहा है why the volume is increasing, can you tell me sir? क्योंकि एक रिजर्वायर से हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं. As the heat is supplied, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. एंड ये गलत फिगर है सर, बिल्कुल गलत फिगर है सर. क्यों गलत है सर? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है सर. अगर स्प्रिंग नहीं रहता है, इट विल बी अ कांस्टेंट प्रेशर. नाउ द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, लीनियरली इंक्रीजिंग. आई हैव सॉल्व्ड सच क्वेश्चंस इन क्लास. जब स्प्रिंग है तो मैं बताया था लीनियरली इंक्रीजिंग. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाया था, मेरे थर्मो के क्लास में. याद है सर? याद है सर? वेरी गुड सर. इधर देखो, इज इट अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है. क्योंकि ये स्प्रिंग है. सो ये स्प्रिंग है तो द प्रेशर इज वेरिंग. अब ये बोल रहा है सर, जब ये टच हो रहा है यहाँ पे, जस्ट व्हेन ये टच हो रहा है, सुनो सर, सुनो सुनो, जब ये टच हो रहा है तो यहाँ का वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब. यहाँ का प्रेशर हो गया 400 kilopascal. टेम्परेचर मुझे पता नहीं सर. The air is pressure दिया सर. Volume is 1 meter cube and pressure is 400 kilopascal. गलत है सर ये. 400 kilopascal. Pressure is 400 kilopascal. Pressure is 400 kilopascal. 400 Kelvin नहीं, 400 kilopascal है. सुनो सुनो, सवाल यहाँ पे नहीं रुका सर. This is state 1. This is state 2. एक बार क्वेश्चन को नहीं, गलत सर, आप क्वेश्चन को नहीं समझे. जैसे ही ये टच कर रहा है पिस्टन, जब ये टच कर रहा है तो प्रेशर इज 400 बोला है. वेट सर, वेट सर, वेट सर, वेट सर. एग्जैक्टली, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली. T2 पता नहीं. अब ये क्या बोल रहा है? सुनो कि आप क्वेश्चन को समझो. इफ द पिस्टन इज एट स्टॉप्स, द वॉल्यूम, मतलब जैसे ही स्टॉप्स पे आ गया, वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. जैसे ही पिस्टन स्टॉप किया गया, वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. ठीक है. एंड द प्रेशर इज 400 kilopascal रिक्वायर्ड. मतलब स्टॉप्स को टच जब कर रहा था, इतना प्रेशर चाहिए. क्यों प्रेशर बढ़ रहा है, कोई बता सकते हैं सर? कैन एनीवन इन द क्लास टेल व्हाई द प्रेशर इज इंक्रीजिंग? बिकॉज यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग. जब कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग, वो क्या करेगा? जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, इट विल ट्राई टू कम बैक. इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पिस्टन. देयरफॉर द फ्लूइड प्रेशर इज इंक्रीजिंग.
यहाँ पे प्रेशर स्प्रिंग का सॉरी एयर का प्रेशर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग. वेट क्वेश्चन इज नॉट ओवर. द एयर देखो, if the piston is at stops, the volume is this much, pressure is this much. Okay. अब यहां से क्या करा पता है? The air is then heated from the initial state to 1500 Kelvin. मतलब यहां से टच होने के बाद भी हीट कर रहा है वो. क्वेश्चन को नहीं समझे आप, क्वेश्चन को नहीं समझे सर, क्वेश्चन को नहीं समझे. मैं देखो एक बार. If the piston is at stops, जब वो स्टॉप्स पे है, मतलब ये पोजीशन, the volume is 1 meter cube, okay, and कितना प्रेशर चाहिए? 400 kilopascal है. Very good. अब ये बोल रहा है the air is then heated, यहां से और हीट कर रहा है. कहां, कब तक? Until देखो from initial state to 1500 Kelvin. अच्छी बात है सर. Now it is heated to 1500 Kelvin. देखो मस्त क्वेश्चन है सर. Now you tell me. Wait. Mac, I'm coming. मैं पूरा बताऊंगा सर, पूरा बताऊंगा. लैंग्वेज को समझो. वो क्या बोल रहा है मैं बताता हूं सर. Wait, sirs, why are you in hurry? मैं हूं ना सर. टेंशन में मत आना. Wait, sirs, अरे सब लोग आप कमेंट करें तो मैं क्यों, फिर आप कर लो. फिर एक्चुअली वो बोल रहा है ना, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक कर रहा है, तो बीच में जो हो रहा है वो इंफॉर्मेशन दिया. एक्चुअली इनिशियल स्टेट जो 300 केल्विन है ना, इनिशियल स्टेट जो 300 है ना, वहां से 1500 केल्विन तक सफर बताया. बताते बीच का थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया. नहीं आया सर आपको जो सफर चल रहा है? देयर आर 2 प्रोसेसेस. नहीं आया. समझ में आया सर सफर आपको? समझ में आया सर सफर आपको? यहाँ पे इट इज 1500 केल्विन बोला है. सॉरी सर, ओवर एंथुसियाज्म में लिखा. क्या पूछा है सर? क्या मस्त क्वेश्चन है सर. स्प्रिंग वेरीज लीनियरली बोला. और देखो इरिवर्सिबिलिटी पूछा है सर जी. इरिवर्सिबिलिटी पूछा है सर जी. कुछ मत करना सर. इज द सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन? इज द सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन? कहीं कहीं दिया. देखो मैं बताता हूं. 20 डिग्री दिया है रे बाबा. तो आपके टीचर ने जब थर्मो पढ़ाए थे, irreversibility is T naught into entropy change of universe. पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे सर? बिल्कुल पढ़ाए थे. सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते सर? entropy change of system, universe is entropy change of surroundings. Excellent sir. अगर ये एयर को सिस्टम मानेंगे तो ये रिजर्वायर क्या होगा सर? ये रिजर्वायर विच इज एट 1700 केल्विन, ये क्या होगा? सराउंडिंग्स होगा. उस सराउंडिंग से हीट ले रहा है. मेरे एयर के लिए, फॉर माय एयर, इफ एयर इज माय सिस्टम, which one is surroundings? रिजर्वायर. क्योंकि अब अगर ये मेरा सिस्टम है तो ये सराउंडिंग्स हो जाएगा. एक्सेलेंट सर. इसका मतलब सराउंडिंग्स से आप हीट ले रहे सर, तो सराउंडिंग्स के लिए हीट ट्रांसफर क्या होगा? माइनस होगा. बिकॉज यू आर टेकिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स. मेरे सिस्टम के लिए प्लस होगा. वेट सर, बिफोर वी प्रोसीड, कुछ करना बाकी है सर. क्या बाकी है सर? सुनो केयरफुली. कैन आई कैलकुलेट मास? चाहिए सर यहाँ पे मास. तो इनिशियल ये तो क्लोज सिस्टम है, मास तो चेंज नहीं हो रहा. सर मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. देखो P1 V1 is equal to MRT1. ये तो एयर है सर, ये तो एयर ही है ना, एयर है. वेरी गुड. तो M is equal to P1 V1 by RT1. Pressure should be initially it is 200. What is the volume? 0.5. For air, R is 0.287. Whenever R is in kilojoule per kg Kelvin, pressure should be in kilopascal. T1 is 300
क्या मुझे मास आएगा सर? बिल्कुल आएगा। तो मास आ रहा है सर 1.161 kg, लीव इट सर। और एक बात इधर देखो, क्या ये मास चेंज हो रहा है? नो, द सेम मास इज एक्सपैंडिंग। तो क्या नहीं इक्वेट दिस मास एंड दिस मास? माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, क्या नहीं इक्वेट दिस मास एंड दिस मास? क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि यहां का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए PV is equal to mRT. तो क्या नहीं राइट माय डियर स्टूडेंट्स, M is equal to PV by RT। तो ये बन जाएगा P1 V1 by RT1 is equal to P2 V2 by RT2। तो R कट गया, तो P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। एंड अगर ये किलो पास्कल में है, किलो पास्कल, मीटर क्यूब केल्विन, P1 is 200 and what is V1? 0.5 by T1 is 300 Kelvin is equal to P2 दिया है सर 400, V2 1 and T2। So can you tell me the value of T2? चॉकलेट मिलेगा 1200 केल्विन। Oh my God, जिसका इंतजार था वो मिल गया। वंडरफुल। और एक बात बताओ, can anyone in the class tell what is the volume here? अरे नमूने अगर हीट कर रहा है तो ये स्टॉप्स पे है, it is at a stop, can it go same volume? Can I write V3 is equal to 1 meter cube? नहीं समझ में आया, it is a constant volume heating। शर्म करो कुछ तो। क्या मैं P3 को कैलकुलेट कर पाऊंगा सर? क्या मैं P3 को कैलकुलेट कर पाऊंगा? 2 to 3 is a constant volume process। 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 तो constant नहीं आ रहा सर। 2 to 3 is a constant volume process। 2 to 3 is a constant volume process। इसलिए देखो PV is equal to mRT, mass is constant, R is constant, volume is constant। तो P is proportional to T। ये किसके लिए? 2 to 3। Can I write this as P3 by P2 is equal to T3 by T2? P3 I do not know, by P2 is 400 is equal to T3 is 1500 by T2 is 1200। Can anyone give me the value of P3? P3 कितना आ रहा है सर? 500 का पार। सर पूरे वैल्यूज आ गए, कोई टेंशन है सर? बिल्कुल नहीं है सर। लेट मी रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑन PV डायग्राम। क्या हुआ रे बाबा? लेट मी रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑन PV डायग्राम। क्या समझ में आया सर? इट कैन बी योर MSQ क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम? एनीवन? द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.5 and the final volume V2 is equal to V3 is equal to 1 meter cube। What is the initial pressure? My dear loving students, what is the initial pressure? कहां पे दिया? 200। Dear loving students, can I write this as my 0.1? क्या हम इसको 0.1 लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अब देखो सर, अब देखो what is 2.2 पे प्रेशर है 200, वॉल्यूम इज 1 एंड प्रेशर कितना है सर? 400 ना? इज इट 400? यस सर। सर एंड क्लियरली ही सेड इट इज वेरिंग लीनियरली, क्योंकि स्प्रिंग लीनियर है। वंडरफुल सर। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? देखो, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? बोलो रे बाबा। फाइनल प्रेशर is 500 and what is the final volume? Everyone knows the final volume is 1 only। it is a constant volume। इसीलिए my dear loving students, इसीलिए ये process होगा ऐसे रे बाबा। So this is my state 3। excellent sir। and P3 is equal to 500 kilopascal। process समझ में आया सर? बहुत बढ़िया सर। इधर देखो रे बाबा। हाउ डू आई कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग से आप ध्यान से सुनो, इस सराउंडिंग से आप, माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, इस सराउंडिंग से आप, सो सिस्टम ये है,
सिस्टम है सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से आप हीट ले रहे हैं सर, हीट ले रहे हैं, तो सराउंडिंग के लिए हीट क्या होगा, माइनस होगा. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. व्हेन आई कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग्स, फ्रॉम सराउंडिंग्स यू आर टेकिंग, तो इट विल बी माइनस क्यू बाई टी. रिजर्वायर के लिए क्यू बाई टी होता है सर. समझ में नहीं आ रहा सर. वाई माइनस सर, वाई माइनस सर, why minus sir? Because my surroundings are losing. Excellent sir. So entropy change of surroundings minus Q by temperature of reservoir. Oh my God. So class minus Q by T. Clear or not? Minus Q by T. बोलो सर, बोलो. तो y minus, because y minus, सुनो सर, y mcdt दे, y क्या हो रहा है सर? What is happening sir? अरे reservoir, this is the reservoir which is at 1700 Kelvin. रिजर्वायर से आप एयर को सप्लाई कर रहे हीट, तो रिजर्वायर के लिए Q क्या होगा, फ्रॉम द रिजर्वायर इट इज टेकिंग, तो रिजर्वायर के लिए माइनस Q बाई टी होगा. एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए माइनस लिखा. एंड व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ रिजर्वायर, व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर का टेंपरेचर क्या है, 1700. सो दिस इज माइनस Q बाई 1700. सो समहाउ इफ आई कैलकुलेट Q, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज आएगा. फिर सिस्टम का कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिस्टम के लिए 1 to 2 और 2 to 3, इट इज एन आइडियल गैस. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज फॉर 1 to 2 प्रोसेस प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर 2 to 3 प्रोसेस. वेट करो, वेट करो. तो एंट्रोपी चेंज 1 to 2 के लिए क्या लिखेंगे, mcp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1, because मास दिया तो ले रहा है. क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है सर? इज दिस mcp ln T2 by T1 minus mr, ये 1 to 2 के लिए है. सर कुछ नहीं बोल रहे सर, आप कुछ नहीं बोल रहे सर, आप यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग. तो आप बताइए सर, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर 1 to 2? m को बाहर ले लो, cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. ओके, सो मास आ गया सर. व्हाट इज द मास, मास 1.161. तो एंट्रोपी चेंज सिर्फ 1 to 2 के लिए कैलकुलेट कर रहा सर, 1.161, cp 1.005, ln T2 by T1. what is T2? 1200 by 300, 1200 by 300 minus R is 0.287, ln P2 by P1. P2 is 400 and P1 is 200, 400 by 200. एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड रुको. व्हाट इज एंट्रोपी चेंज फॉर 1 to 2? यूनिट चेक करना. मास इज इन केजी, सीपी इज किलोजूल पर केजी केल्विन, एंड ये इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इट विल बी किलोजूल पर केल्विन. एनीवन विद एंट्रोपी चेंज 1 to 2? एनीवन विद एंट्रोपी चेंज 1 to 2? 1.3865. कैन आई कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर 2 to 3? देखो, एंट्रोपी चेंज फॉर 2 to 3 इज mcb ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. I think we know this equation. याद है सर, आपको पता है सर. इसके लिए नहीं आ रहा सर आपको, क्यों ये इक्वेशंस अप्लाई कर रहे हैं सर? बिकॉज आई नो P1 T1, आई नो P2 T2, इसलिए यहाँ पे क्या है सर, दिस द इक्वेशन. व्हाट इज वॉल्यूम, तो इसको लिखूंगा. I don't understand how y equals. देखो 2 to 3, it means T3 by T2, V3 by V2. क्योंकि ये 2 to 3, so T3 by T2, V3 by T2, ये वॉल्यूम सेम है, ये वॉल्यूम सेम है. T3 by T2, final for 2 to 3, it is final, it is initial, final by initial. Okay sir. So therefore, what is V3 and V2? दोनों सेम है, तो V3 V2 सेम है. V3 by V2 is 1, तो log 1 is 0, तो ये 0 हो जाएगा. So entropy change for 2 to 3, 1.161, and what is Cv? 0.718 ln T3 by T2. What is T3 by T2? What is T3 by T2? Already T3 is 1500 and T2 is 1200. It is 1500 by 1200. तो कितना आ रहा है सर? Anyone?
What is the entropy change for 2 to 3? .186 kilojoule per Kelvin. Can I calculate the total entropy change of system? It is 1 to 2 plus 2 to 3. 1 to 2 plus 2 to 3. 1 to 2 is 1.3865 and 2 to 3 is 0.186. तो कितना आ रहा है सर entropy change of system? 1.573 kilojoule per Kelvin. Excellent, sir. Now the problem is, in order to calculate irreversibility, T naught. What is T naught? Surrounding temperature. It should be in Kelvin. 20 degree centigrade is given. 273 plus 20 is 293. System entropy change आ गया, surrounding नहीं आया. कैसे calculate करेंगे? My dear loving students, D dash Q is equal to du plus D dash W. सुनो उमंग Q by T लिख रहा है, आपको Q ही पता नहीं है. You are writing Q by T, but you don't know Q. Useless fellow. तो सिस्टम के लिए अप्लाई करो. सिस्टम के लिए कैलकुलेट करूंगा सर. व्हाट इज डी डैश क्यू? इट इज du mcb. व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? T3 माइनस इनिशियल टेम्परेचर. नहीं आ रहा सर. व्हाट इज द फाइनल? सिस्टम इज अंडरगोइंग फ्रॉम 1 to 3, सो फाइनल टेम्परेचर इज T3, इनिशियल इज T1 प्लस वर्क. व्हाट इज द वर्क इन दिस प्रोसेस? वर्क इन 2 to 3 0. What is the work in this process? Area calculate करना. इसका area. My dear loving students, इधर देखो sirs. You calculate this area. That will give me work. ये तो positive work है. It is expansion, volume बढ़ रहा है. Can you give me work? Sirs? Let me calculate the work. So therefore, work is equal to half into sum of the parallel sets. ये height कितना है sir? ये कितना है? 400. ये वाला. So I want this work. ये तो 0 है. 2 to 3 is 0. I want this work. 1 to 2. So this is 400 and this is 200 into distance between them. 1 minus 0.5. तो work कितना आ रहा है sir? Anyone? 150 kilojoule. And you know, my dear students, 150 kilojoule. So 150 kilojoule. So heat transfer is equal to M is 1.161 and CB is 0.718. The final temperature is 1500 and the initial is I think 300 plus 150. Can anyone tell what is the heat transfer? बोलो. Heat transfer कितना आ रहा है सर? 1150.32. Excellent sir. तो ये सिस्टम के लिए प्लस है because you are supplying to system. What is the entropy change of surroundings? My surroundings are acting like reservoir. तो सराउंडिंग से 1700 केल्विन से हीट ले रहा है. कितना ले रहा है? तो सराउंडिंग के लिए माइनस होगा. minus 1150.32 by 1700 Kelvin. नहीं आ रहा सर. Anyone with entropy change of surroundings? Anyone? सर मुश्किल है सर आपको पढ़ाना. So irreversibility is equal to T naught into entropy change of system plus entropy change of surroundings. So irreversibility is T naught is 293. System is already we know system. सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना है सर? सिस्टम एंट्रोपी चेंज 1.573 and surroundings is minus 0.676. So anyone what is the irreversibility? मत बोलो सर. 262 kilojoule. Is it not a good question sir? इसमें वर्क कैलकुलेट किए, फाइनल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट किए, बहुत सारे पैरामीटर्स. इसको एक बार करना सर. पूरे आ गए सर. एनर्जी इंटरेक्शंस, एंट्रोपी, अवेलेबल एनर्जी, एवरीथिंग. दैट्स व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. बाय बाय, गुड नाइट. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. गुड नाइट, फिर मिलेंगे. एक अच्छा क्या लगा पता है सर? जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली आए थे वो पूरा अटेंड करके